فعول کی اقسام۔ جی آ رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جو کچھ اصول پڑھے تھے ان کی آج ہم پریکٹس کریں گے۔ اس میں ایک اصول یا ایک قاعدہ اس کا یہ تھا جو کہ 4 نمبر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ فاعل کے علاوہ جو بھی پایا جائے گا جملہ فعلیہ میں وہ سب حالت نصب میں ہوگا، جب تک کہ کوئی حروف جارہ اس پہ داخل نہ ہو۔ یا اگلی بات اور بھی آپ جانتے ہیں کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حروف جارہ کے علاوہ اور بھی کوئی ایسا عامل جو حالت جر میں لے جاتا ہے وہ اگر موجود نہ ہو تو باقی ایک ہی بات ہے کہ فاعل نے ہونا ہے حالت رفع میں اور باقی سب چیزوں نے حالت نصب میں ہونا ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں ہیں، بلکہ ایک جملہ میں نے کنسٹرکٹ کیا تھا تاکہ وہ ذرا باتوں کو واضح کر دے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں قاتلہ حامد خالدن۔ قاتلہ فعل ہے، جیسے آپ نے کہا تھا کہ فعلہ فعلہ کے وزن پہ آنے والا ہے۔ حامد فاعل ہے حالت رفع میں، اور مفعول جو ہے وہ خالدن ہے جس کے اوپر اس قتل کا اثر پڑا، یعنی جو مقتول ہے، مفعول مقتول۔ قتل حامد خالدن، تو یہ ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے، فعل موجود، فاعل موجود اور مفعول بھی موجود ہے۔ اب اس میں دیکھیں تھوڑی ویریشنز آتی ہیں، تو وہ چیزیں چند ایک میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ اگر میں اس کو ایسے کر لوں قاتل خالدن، تو ایک چیز اس میں سے مائنس ہو گئی اور وہ ہے فائل۔ فائل یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن جملہ پھر بھی مکمل ہے، قتل خالدن۔ ابھی بھی پتہ چل رہا ہے اس قاتلہ سے کہ واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب ہے قتل کرنے والا، اور قتل ہونے والا خالد ہے۔ لیکن یہ اس کا نام حامد ہے یہ اب پتہ نہیں چلا۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر اس میں فائل جو ہے وہ فائل اس میں ظاہر ہے، اور یہاں پر فائل اس میں ظاہر نہیں ہے، وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ کیسے چھپا ہوا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن پتہ چل رہی ہے کہ وہ واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، کیونکہ اس کے مطابق صیغہ استعمال ہوا ہے۔ مؤنث ہوتی تو قتلت ہوتا، اور اگر میں ہوتا تو قتل تو ہوتا، ہم ہوتے تو قتل نہ ہوتا۔ لہٰذا یہاں پر وہ چھپا ہوا ہے جو کہ فاعل ہے، اس کے بارے میں کافی انفارمیشن، 3 چیزیں آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں کہ واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے۔ اچھا اس سے آگے بھی اگر چلیں سمپلیفیکیشن کی طرف تو پھر بھی یہ جملہ مکمل ہے۔ قاتلہ، اب کیا ہوا جی؟ ہم نے خالد کی جگہ اس کا اس میں ضمیر لگا دیا تو قاتلہ ہو گیا، اور اس میں نمبر ضمیر آپ کو پتا ہے کہ یہ جڑ چکا ہوا ہے، اس کا ہو جو ہے یہ جڑ کے آیا ہوا ہے، قاتلہ ہو۔ تو یہ بھی ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے، اس میں بھی آپ کو کافی چیزوں کا پتہ چل رہا ہے۔ قتل ہوا، ماضی میں ہوا، واحد مذکر غائب نے کیا، اور کوئی مذکر غائب، واحد مذکر غائب ہی قتل ہوا۔ یہ قاتلہ کے اندر بھی کچھ انفارمیشن ہے اور اس ہو کے اندر بھی انفارمیشن ہے۔ مزید اگر ہم چلیں، اس ہو کو بھی ہٹا دیں، اس ضمیر کو بھی ہٹا دیں، تب بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پتا چل رہا ہے، مکمل اتنی انف انفارمیشن موجود ہے جو کہ ایک جملے کے لیے کافی ہے۔ قاتلہ کہ کسی واحد مذکر غائب نے قتل کیا، کسی کو قتل کیا، وہ کسی جو ہے اس کی تعداد کیا ہے، وہ کون ہے، وہ نہیں پتا، لیکن پھر بھی ایک خبر پتا چل گئی کہ قتل ہوا ہے، کہ کسی واحد مذکر غائب نے قتل کیا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کی کنسٹرکشنز آپ کو ملیں گی۔ چاہے یہاں پر فائل موجود ہوگا وہاں پر آپ کہیں گے کہ ظاہر ہے، اور جہاں پر موجود نہیں ہوگا وہاں آپ کہیں گے کہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر ہی، فعل کے اندر ہی، اور وغیرہ وغیرہ۔ آگے چل کے اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ کچھ مثالیں کل دیکھی تھیں، آج اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں، اچھی طرح سے دیکھتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے۔ خالق الانسان من علق، یعنی خلق الانسان من علق۔ پہلا سوال، کیا اس میں فاعل موجود ہے اس میں ظاہر کے طور پہ؟ خلا میں موجود ہے۔ فاعل خالق میں موجود ہے، اس میں ظاہر کے طور پہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انسان جو ہے یہ فاعل نہیں ہے، یہ مفعول ہے۔ کیوں؟ کہ یہ حالت نصب میں ہے، الانسان نہیں ہے، الانسانہ ہے۔ تو یہ باری باری سب چیزوں کو پرکھتے جائیے تاکہ ہم جلدی سے جلدی بغیر سوچے ریفلیکس سیکشن کے طور پہ جملے کو سمجھ سکیں۔ خلق الانسان من علق، من علق تو انفارمیشن آ گئی فردر، کہ چپکے ہوئے گارے سے، چپکے ہوئے مادے سے بنایا۔ خالق کا واحد مذکر غائب نے بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا، واحد بھی ہے، مذکر بھی ہے، غائب بھی ہے۔ الانسان انسان کو،
तो मैंने एक शुरू में पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में कहा था कि ने और को ये पेश और जबर से पहचाने जाएंगे। तो किसी वाहिद मुजक्कर गायब ने इंसान को चिपकने वाले मादे से बनाया। ठीक है। अब जाहिर है कि हम उर्दू में तर्जुमा करते हुए ऐसे अच्छा नहीं लगते कि किसी वाहिद मुजक्कर गायब ने ऐसे किया। वो अच्छा नहीं लगता और उसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती। लिहाजा ये एक माजूरी आ गई उर्दू जुबान की। जबकि अरबी में यही बात करेंगे तो अच्छा भी लग रहा है, मुकम्मल भी लग रहा है और इंफॉर्मेशन भी पूरी आ रही है। ये माशाल्लाह अरबी की ये एक खुसूसियत है। खलकल इंसाना मिन अलाकिन। राकिबा, राकिबा राकिबा राकिबू, फाला फाला फालू। तो ये दो का सीगा है जी, राकिबा। दो बैठे, राकिबा सवार हुए, फिस सफीनती कश्ती में। फिस सफीनती कश्ती में मुरक्कब जारी आ गया। तो राकिबा फिस सफीनती दो बंदे, दो मुजक्कर गायब बैठे एक कश्ती में, ये इसका मतलब हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको दे रहा हूं मैं, आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल इसी जुमले में से निकले। दो मुजक्कर गायब बैठे एक कश्ती में। बैठे कहां से आ गया, वो भी इसी के अंदर ही सवार हुए। अच्छा जी, लाकिया, दो मुजक्कर गायब थे, वो मुलाकात की उन्होंने किसी से। गुलामन, गुलामन क्या था जी, गुलामन मफऊल था। आगे जी, आगे है जी नसिया। नसिया नसिया, दो बंदे भूल गए जी, किसको, हूता हुमा। अगर हम कहें ना उन दोनों की मछली, तो वो होगा हूतू हुमा। लेकिन हालत नस्ब में आ जाएगा तो हूता हुमा। तो दो मुजक्कर गायब उन दोनों की, यानी अपनी, उन दोनों की जो मलकियत थी मछली, उसको भूल गए। वो दोनों भूल गए अपनी मछली को, बामुहावरा। तर्जुमा ये आ गया सूरह कहफ। सूरह कहफ, सूरह कहफ और ऊपर सूरह अलग थी। तो सूरह कहफ का हजरत मूसा और खिज्र का किस्सा यहाँ पर आपको मिसालों के तौर पे मिल रहा है, आगे भी चलेगा जी। वाजादा, मौजूद पाना, दो ने मौजूद पाया। वाजादा, वाजादा वाजादा वाजादू वाजादत, ये गर्दान चलती है इस तरह से। फीहा, इस मोहनस चीज के अंदर, मोहनस चीज क्या है जी, बस्ती। उन दोनों ने इस फीहा बस्ती में क्या चीज पाई। वजदा, वजदा का मतलब है पाया, पाई। जिदारन, दीवार। जिदारुन मोनस का होता पता है कैसे चला? दीवार जी। मोनस का कैसे पता चला कि फीहा, फीहा मोनस फीहू नहीं है जमीर या है? फी ही नहीं है, फीहा, हा जो है जमीर है मुअन्नस की। वजदा फीहा हुआ जिदारन, हुमा जैसे रजी अल्लाह ताला हुआ। अनहा और रजी अल्लाह ताला अनहो होता है। जी जी। देखें, इन किससे पहले सिलसिला कलाम में ये होगा ना, यकीनन जिनको माशाल्लाह हिफ्ज है या जिनके जहनों में कॉन्सेप्ट है कि बस्ती का किसी करिया का जिक्र होगा, अगली आयत में उसका जिक्र नहीं कियागा, उसकी जगह जमीर आ गई वजदा फीहा जिदारन, कि इसके अंदर, इस मुअन्नस चीज यानी बस्ती के अंदर उन्होंने एक दीवार को पाया, उन्होंने दीवार पाई। जाराबा, ये वाहिद का जिक्र आ गया जी। अब जाराबा, उसने, अच्छा जरबुल मिसल जो होता है ना, जरबुल मिसल ये वहां से है, बयान करना। कि वैसे जाराबा का मतलब होता है मारना। तो ये कहते हैं ये जो बात की जाती है ना, ये भी उसी कॉन्सेप्ट से निकला है कि जी बात भी आप किसी को मार रहे होते हैं, मतलब एक ही मादा है इनका। जाराबा, जाराबा बयान करना या मारना, एक ही चीज के दो मतलब हैं। मतलब जाराबा का मतलब मारना भी है, जारा का मतलब बयान करना भी है। जाराबा, उसने बयान की। एक बंदा था, वाहिद मुजक्कर गायब, सीगे से पता चल रहा है। ला, ना, हमारे लिए, फॉर अस। मसलन, एक मिसाल बयान की। मसलन, वैसे मसलन होता है लेकिन मसलन इसलिए है क्योंकि मफऊल है, क्योंकि ये बयान की जा रही है, ये वो चीज़ है जिस, जो कि मफऊल है। ज़रा लना मसलन, व नसिया, और भूल गया। कल का हूँ, अपनी तख्लीक, अपना पैदा होना भूल गया कि किस तरह से पैदा हुआ, और हमारे लिए मिसालें बयान कर रहा है। खराजा, खराजा खराजू, बहुत सारे थे निकले जी। वाहिद नहीं है, मुजक्कर गायब जमा, उसका सीगा है खराजा, खराजा खराजू। खराजू मिन दियारिहिम, निकले अपने घरों से। दियारिहिम, व
हुम उलूफुन, और वो हजारों। उलूफुन हजारों, अल्फ जो है वो हजार होता है, उलूफ जो है हजारों होता है, जमा है उसकी। वो अपने घरों से निकले और वो हजारों थे। खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन। तो इन सब को आप डिसइंटीग्रेट करें तो हर एक का मतलब आप समझते हैं, तमाम रूल एक एक जेर जबर पेश का आपको पता होगा। कहते हैं तो किसी भी को डिस्कस कर लेते हैं कि ये जेर क्यों है और ये जबर क्यों है। मुझे उम्मीद है कि कोई मसला नहीं होगा, बट स्टिल आप क्लियरेंस देंगे तो आगे चलेंगे। दियारी हिम क्यों आया है? दियारी हिंद की जगह आपके ख्याल में क्या आना चाहिए था? उर्फ जर है ना। दियारी होम क्यों नहीं आया? जी। दियारी होम क्यों नहीं आया? होम क्यों नहीं आया? ये आप जरा जब जमायर वाले में पढ़ेंगे कि हिम कहाँ इस्तेमाल होता है, कि इससे पीछे जेर आता है, तो दियारी हिम ही हमने पढ़ा था बाकायदा। जब हमने हुआ हुमा हुम जो है इसके बारे में तफसील पढ़ी थी, तो ये हिम भी इस्तेमाल होता है पिछली वाली हरकत के तहत। पीछे जेर होगा तो ये हुम नहीं हिम होता है। मिन दियारी हुम नहीं होता, मिन दियारी हिम। थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, उसमें मेंशन है ये। अरबी अरबी कायदे के मुताबिक तो ये दोबारा वाहुम उलूफुन, तो वाहुम इसमें मकूफ हो सकता है, तो तब भी जुमले का मकसद बन जाएगा। नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा कि हुम जो है वो क्या होना चाहिए। दियारी हिम वो अपने मौजूद हो घरों से गया, निकले और वो हजारों थे। वह हुम उलूफुन, और वो थे हजारों। तो हम वो अगर हो जाए, फर्ज करें, हुम को अगर छोड़ तो दें, ये जुमला बनेगा। जुमला बन जाएगा, लेकिन इस पैटर्न पे नहीं बनेगा जिस पैटर्न पे ये है। वो कोई कोई ना कोई और फिर बताना पड़ेगा उनको, मुरक्कबे तौसीफी कोई बनाना पड़ेगा, इस तरह की कोई चीज बनेगी। लेकिन ये इस तरह से, जिस तरह से ये कंस्ट्रक्शन हुई है, ये भी ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। इसमें ये है ना कि ओके ये जो सर। वाव है ना, ये वाव, इस वाव को तफसीरिया कहा जाता है। इस तरह की वाव की इकसामियां बयान नहीं पढ़ाई गई इस बुक में। बहुत ज़्यादा इकसाम नहीं पढ़ाई गई, दो तीन ही हैं, जो वाव कस्मिया है, वाव अतफ है। लेकिन ये इसको क्या, ये वो वाली वाव है जिसके बाद तब इसकी तफसील आ रही है, इसको वाव तफसीरिया। और ये भी आप याद रखें कि ये जो वाव के बाद वाला जुमला है ना, वो जुमला इस्मिया है। अगर मजीद आप तफसील में जाते हैं, मजीद इसका इंटरसेक्शन करना चाह रहे हैं, तो ये देख लें कि शुरू वाला जुमला फेलिया है वाव से पहले, और उसके बाद एक नया हाँ, जुमला जहाँ शुरू हो रहा है और जुमला वो इसमिया है। सर अल्लाह ये की शायद अरबी कह रहे हैं अल्फ कि में होता है। होम दोबारा जब आया है तो शायद वो महजूफ भी हो तो मतलब अदा हो जाएगा, शायद ये कहना चाह रहे हैं। खरजो मिन दियारिहिम उलूफुन, तो फिर वो उलूफन आएगा जी। वो फिर अब वो चीज हमने अभी पढ़ी नहीं कि वो किस हाल में थे। वो उनका स्टेटस बताया जाएगा, उनकी कंडीशन बताई जाएगी, तो वो बेहतर होगा कि वो उलूफन आएगा। लेकिन वो मंसूबात, यानी अभी कल हमने एक जुमला पढ़ा था, उसकी तरफ चले जाते हैं। ये आइएगा जरा इसकी तरफ। हाँ, ये वाला जुमला जिस इस्म पर वाक़या होता है वो मफूल होता है इसके। जिस वक्त पर वाक़या होता है, जिस जगह पर वाक़या होता है, जिस हालत में वाक़या होता है, ये हालत वाला मामला आ जाएगा। जिस वजह से वाक़या होता है, ये सब हालत नस्ब में होगा। तो फिर उसके करीब करीब जो चीज़ बनेगी ना, वो ये होगा कि खरजू मिन दियारिहिम उलूफन। ठीक है, वो हजारों की शेप में, हजारों की फॉर्म में निकले अपने घरों से। तो ये बात थोड़ी सी बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि इसको हम को अगर हटा दें, वाह हम को, तो फिर आपको ये चीज़ बिल्कुल उसकी कैफियत या स्टेटस या पोजीशन बताएगी, और फिर उसको हालत नस्ब में आना पड़ेगा। ये बेहतर मैं रिकमेंड करूंगा कि जहां पर हमने इसको पढ़ना है, इंशाल्लाह ताला वहां पर जाके वाजे हो जाएगा। और ज़रूर याद करवाइएगा कि हमने इस आयत को भी उस तरह से अगर ढालना है तो कैसे ढालना है। लेकिन ये जो अभी थोड़ा दूर है टॉपिक, ये आखिरी टॉपिक्स में से एक टॉपिक है कि जिसमें हम बाकी मफूले हाल, मफूले तमीज़ और इस तरह से ज़र्फ वगैरह पढ़ेंगे। तो लेट मी गो फर्दर जी। और सर ये हजारों की जो अरबी होती है वो तो अल्फ अल्फ नहीं होता? वो 1,000 होता है, उलूफुन हजारों। ठीक है, अच्छा। जैसे हम ये बिलियन भी कहते जमा हैं और बिलियंस भी जमा कहते हैं, मुकस्सर हंड्रेड्स भी जमा कहते हैं। मुकस्सर है मेरे ख्याल में। जी जी। जमा मुकस्सर लगती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है सर। अच्छा जी, खतमा, मोहर लगा दी। अल्लाह, अल्लाह जो है फाइल है जी, हालत रफा में है। यहां पर खतमा के अंदर फाइल नहीं छुपा हुआ, बल्कि फाइल जाहिर है। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम।
ठीक है जी, यहां तक भी अगर आप रखें तो फेल वाला मामला यहां तक ही है कि खत्म अल्लाह, अल्लाह ने मोहर लगा दी। यहां भी जुमला मुकम्मल है, लेकिन आगे आ रहा है अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने मुब्तदा को मुअख्खर किया था, वलहुम अजाबुन अजीम। तो ये आपके सामने जो इस वक्त चीज पेश खिदमत है आपके, वो है खत्म अल्लाह, अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी। बाकी जुमले उनकी एक्सप्लेनेशन आप पहले देख चुके हैं कि वो कैसे हैं, और वो देख लें। वा अला अबसारिहिम गिशावा जुमला इस्मिया, ये मुब्तदा है जो मुअख्खर हुआ है। अजाबुन अजीम, ये भी जुमला इस्मिया मुब्तदा है मुअख्खर हुआ है। राइट सर? जी सर, ये लेकिन ये फतह अल्लाह ये फेल माजी नहीं है ना? जी जी, खातमा ये हम माजी ही पढ़ रहे हैं। ये फ़ाला फ़ाला फ़ालू, इस वजन पे जो कुछ भी आ रहा है ये माजी में है जी। ठीक है। आगे ओके। मजारे जब आएगा तो उसके बिल्कुल पैटर्न डिफरेंट है। वो फ़ाला नहीं होगा, वो या फ़ालू होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट है, आएगा इंशाल्लाह। बाकायदा कवायद पे आ जाए जी। अब बाकायदा कवायद, अभी भी कुछ हमने कवायद ही पढ़े हैं, लेकिन अब जरा कुछ कवायद हैं। यानी ये समझ लें कि ये जो थी ना अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा, ये बिल्कुल सीधे सीधे जुमले थे। अब उनमें थोड़े से मजीद एडवांसमेंट शामिल होने लगी है, उन एडवांसमेंट्स के ये कवायद हैं। फाइल जब इसमें जाहिर होगा तो हमेशा वाहिद फेल, हाँ ठीक है, ये जो बताना चाह रहे हैं, अगर फाइल इसमें जाहिर होगा ना, तो फिर आपने क्या करना है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा लगाना है। आपको यकीनन डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको वाजे कर देता हूँ। ये देखें, ये गर्दान है आपके सामने। अगर ये खुल जाए तो इसके साथ मैंने लिंक किया हुआ है। ये देखें, ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर जुमले के अंदर फाइल फाइल इसमें जाहिर है, तो फिर ये जो चीज है ना, फिर आप ये ना देखें कि वो वाहिद है मुजक्कर है या वाहिद है जमा है या तस्निया है। फिर आप यही वाला सीगा इस्तेमाल करेंगे, फाअला वाला। अगर फाइल जुमले के अंदर इसमें जाहिर आ चुका है, तो फिर ये देखने की जरूरत नहीं है कि वाहिद है जमा है या तस्निया है, आप ये वाला ही इस्तेमाल करेंगे सिर्फ। हाँ, जिन्स का ख्याल रखना है, इसकी या इसकी जगह ये नहीं, उस इसकी या इसकी जगह ये, और इसकी या इसकी जगह ये ही इस्तेमाल होगा, और अपनी जगह भी यही होगा। यानी इन छह में से सिमट के आप इन दो में आ जाएंगे। अब इसकी मैं करता हूं वजाहत आपके सामने। देखें, कतला मुस्लिमुन काफिरन, एक मुस्लिम ने काफिर को कत्ल किया। अगर दो हैं कत्ल करने वाले तो काताला नहीं आएगा, काताला काताला कातालू। हाँ, इधर काताला ही रहने दें, मैंने कहा ना छह में से दो ही। तो फिर मुस्लिमानी के लिए भी काताला ही आएगा। तादाद का नहीं पता चलेगा, यहां से चल जाएगा। अगर ज्यादा हैं तब भी आपने इसी को ही चलाना है। जी, मुझसे कुछ कहा जा रहा है या बैकग्राउंड नॉइज है? अच्छा, आगे है जी, अगर मुअन्नस है तो फिर आपने कातला इस्तेमाल नहीं करना, कातलत मुस्लिमातुन काफिर। आगे देखिए, अगर दो मुस्लिम मातानी हैं, दो कत्ल करने वाली दो मुसलमान खवातीन हैं, तो भी कातलत आएगा। और अगर ज्यादा हैं तो भी कातलत आएगा। तो इसको उन्होंने इस तरह से समेटा है अपनी बात में कि फाइल जब इसमें जाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद गायब इस्तेमाल होगा, वाहिद गायब इस्तेमाल होगा। फाइल चाहे वाहिद हो, तस्निया हो या जमा हो, अलबत्ता जिन्स का ख्याल रखा जाएगा, कातला कातलत। क्लियर होगी जी ये बात? अगली मिसालें भी हैं, वहां देख लीजिएगा। हाजा मा जी सर वादर क्लियर। रहमानु, जी सॉरी, रिपीट करूं? नहीं सर, मैंने कहा क्लियर हो गया। ओके जी। हाजा मा वादर रहमानु व सदकल मुरसलून। देखें, यहां तो एक ही है फाइल तो वादा, यहां पर मुरसलून ये जमा है, लेकिन यहां भी सदाका सदाका सदाकू नहीं आया, सदाका सदाका आ गया, क्योंकि आगे फाइल इसमें जाहिर है। हाजा मा वादा रहमानु, ये है वो जो जिसका वादा रहमान ने किया और सच कहा नबियों ने, रसूलों ने।
صدق اللہ و رسولہ، فائل دو ہیں، اللہ اور اس کا رسول، لیکن یہاں صدقہ نہیں آیا، صدقہ آیا ہے۔ صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ قاعدہ نمبر 2، جمع مکسر غیر عاقل، واحد مؤنث غائب، یہ چیز بھی آپ کو یاد ہوگی۔ جمع مکسر غیر عاقل کے لیے واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کیا جائے گا۔ دیکھ لیں جی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فاعل جمع مکسر غیر عاقل ہوگا تو یہ والا صیغہ استعمال ہوگا، یہ والا واحد مؤنث غائب والا، فاعلت کے وزن پہ آنے والے صیغے استعمال ہوں گے۔ کب؟ جب آپ کا فائل جمع ہو مکسر ہو، جمع مکسر ہو اکثر ملتی ہیں آپ کو، اور غیر عاقل ہو وہ بھی اکثر ملیں گے، یہ کمبینیشن اکثر پایا جائے گا۔ ابھی دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ ایک اونٹ تھا جی، وہ چلا گیا، ذہبا جمل، جمل کا مطلب اونٹ، ذہبا فعلا کے وزن پہ، ذہبا جمل، دو تھے تو کیا ہو گیا، ذہبا جملانی، جو بھی رول پڑھ کے آئے ہیں نا کہ یہ اس میں ظاہر ہے تو واحد مذکر استعمال ہوگا، ٹھیک ہے جی، ذہبا جملانی۔ لیکن اگر زیادہ اونٹ تھے تو جمع مکسر غیر عاقل، اونٹ غیر عاقل ہے اور یہ جمع مکسر ہے، تو اس کے لیے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ذہبت جمال استعمال ہوگا، ذہبا نہیں ہوگا اسی رول کے تحت، پچھلے رول کے تحت، بلکہ ذہبت آ جائے گا۔ اسی طرح سے جیم کے نیچے جی جیم کے نیچے زیر کیوں آ گئی ہے؟ جی، جمال اس کی جمع جمال ہے، جمل کی نہیں، جمع مکسر جمال ہے، کہیں سے زیر نہیں آئی، اس کی اپنی۔ آگے جی، اعمال جو ہیں، اعمال یہ بھی جمع مکسر غیر عاقل ہیں، اعمال، ان کے اعمال، اعمالہم، ان کے اعمال، اعمالہم، تو اس کے لیے بھی حابطہ نہیں آئے گا، حابطت، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون، تو اعمال کے لیے حبطت استعمال ہوا ہے، اعمال جو ہیں وہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، اور یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ آپ استعمال کریں گے۔ نازجت جلودہم، جلود بھی جو ہے جلد کی جمع مکسر غیر عاقل ہے، جلودہم ان کی جلدیں، ان کی سکنز، کھالیں۔ نازجہ، نازجہ کا مطلب ہے جھلس گیا، نازجت مؤنث چیز جھلت گئی، تو نازجت جلودہم ان کی کھالیں، ان کی جلد، ان کی جلدیں یا کھالیں جھلس گئی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فاؤلا کے وزن پہ ساقولا، ساقولا کا مطلب بھاری ہوا، مونس کے لیے کیا ہوتا ہے، فاؤلا، فاؤلا، فاؤلو، فاؤلت، ساقولت۔ فاما من سقولت موازین، موازین جو ہے یا موازین، یہ کیا ہے جی، یہ بھی جمع مکسر غیر عاقل ہے، موازین ان کے وزن یا ان کے ایسٹس کہہ لیں یہاں پر۔ فاما من سقولت موازین، فاما من، پس وہ لوگ جو، جن کے سکولت موازین، بھاری ہوئے اوزان، فہوا، فاما من، جس کے، من کا مطلب یہاں پر واحد کے لیے، فاما من سکولت موازین فہوا، تو وہ فی عیشت راضیہ، عیش والی زندگی میں ہے۔ اچھا یہاں دیکھیں، فا اما، اما اور فا، یہاں اس اما کا کنیکشن ہے فا سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایز فار ایز دیٹ از کنسرن، آگے کوما، ہی از اے گڈ بوائے، ایز فار ایز ہی از کنسرنڈ، کوما، ہی از اے گڈ بوائے۔ یہاں پر بھی یہ فا اما، آگے بات چلے گی تو آگے کوما کی جگہ فا آئے گا اور آگے بات چلے گی، تو یہ اس کا ترجمہ انگلش میں کریں گے نا تو یہی ہوگا، ایز فار ایز ہی از کنسرنڈ ہو ہیز گریٹ ایسٹس، ہی ول بی، کوما، ہی ول بی ان لگژری لائف، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز اس طرح سے ہوگی، تو فا اما اور آگے فا، یہ کمبینیشن وہی ہے جو ایز فار ایز اور کاما کا ہوتا ہے، انگلش جو اچھی استعمال کرتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، اور میری بات امید ہے سمجھ گئے ہوں۔
इसका ये भी देखें ना, सूरह वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, इनकी आखिरी आयत क्या क्या है? फामल यतीमा व फ अम फला तकहर व हाँ अम्मा जी, मन खफ्फत वअम्मा मवाज़ीनुहु साइला फला फउम्मुहु तकहर। हाविया। हाँ जी, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। और सूरह जुहा की तरफ जिस तरफ मैं उसमें मेरे ख्याल दो तीन रिपीटेडली इस तरह आती हैं। फामा मन फिर वद्दुहा भूल गया। वल्लैलि इज़ा सजा हाँ मा जी, वद्दअक रब्बुका वअम्मा वमा मन क़ला सकुलत फामल फलाका यतीमा मवाज़ीनुहु खैरुन लक फामल यतीमा वअम्मा फला यतीम तकहर। फला तक़हर हाँ जी, वअम्मा फाम साइला फला वामस तनहर साइला फला तनहर, इस तरह से जो चलता है, बिल्कुल यही कम्बिनेशन ये चल रहा है ये वअम्मा बहरहाल। बिनिमत रब्बिका फहद्दिस। हाँ जी, फहदिस। तो फा या वा के साथ वो शुरू हो रही हैं, और आगे बीच में फा के साथ फहदिस। बिल्कुल वही वाला कम्बिनेशन है जो यहाँ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल यहाँ पर जो प्राइम फोकस है इस वक्त वो यही है कि जमा मुकस्सर गैर अक़ल के लिए वाहिद मुअन्नस गायब आप इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 3 क्या है जी? कि मुदरजा झैल 4 सूरतों में, एक रूल के अंदर 3 रूल आप पढ़ेंगे। मेरा ख्याल है इसी के साथ ही हम खत्म कर देंगे जब ये हम आज के रूल्स पूरे करेंगे। फिलहाल रूल नंबर 3 के अंदर 4 रूल तो पहले पढ़ने हैं हमने। नोटिस भी आ गया कि 10 मिनट बाकी रह गए। वो ये है जी कि अगर जमा मुकस्सर आकिल हो, जमा मुकस्सर गैर आकिल तो समझते आ रहे थे, बहुत सारी चीजें जमा मुकस्सर गैर आकिल होती हैं, कुछ जमा मुकस्सर आकिल भी होती हैं। अगर जमा मुकस्सर आकिल हों, इनकी मिसालें आएंगी तो देखेंगे। तो उसके लिए आपके पास चॉइस है कि आप ये वाला सीगा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी तक कर रहे हैं, और साथ ये भी कर सकते हैं। चाहे ये कर लें, चाहे ये। अभी तक तो हमने कहा था ना, जमा मुकस्सर गैर आकिल हो तो ये करना है। लेकिन जमा मुकस्सर आकिल हो, जमा मुकस्सर आकिल हो तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये है जी ये वाला रूल। मिसालें देख लें। काताबा राजुल, ठीक है। काताबा रजुलानी, अब देखें ना, रजुल क्या है? मर्द, आकिल है। चाहे जितना मर्जी बेवकूफ क्यों ना हो, लेकिन आकिल है, क्योंकि इंसान जिन्न और फरिश्तों में शामिल होता है। और इसकी जो जमा है वो है रिजाल। तो ये जमा मुकस्सर आकिल है। गौर कीजिए, जमा है, मुकस्सर है, आकिल है। इसके लिए आप काताबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काताबत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि फ़ाअला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ाअलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से कारा निसाउन, औरतों ने पढ़ा। कराअत निसाउन, औरतों ने पढ़ा। क्योंकि निसा जो है ये भी जमा मुकस्सर आकिल है, इसलिए या चौथा पहला या चौथा सीगा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा इसका है जी, पहली कंडीशन तो आपने देख ली ना, कि जमा मुकस्सर आकिल हो। तो दूसरा ये है कि अगर आपका फाइल कलेक्टिव नाउन हो, तब भी आप दोनों में से पहले या चौथे सीगे में से इस्तेमाल कर सकते हैं। सीगा किसका? फेल का। अल कौम, जमा मुकस्सर आकिल, जमा है नहीं, सॉरी, जमा मुकस्सर आकिल को छोड़ दें। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के लिए गलाबा भी इस्तेमाल हो सकता है, गलाबत भी इस्तेमाल हो सकता है। गलाबल कौम, कौम भी ठीक है, और गलाबतिल कौम भी ठीक है, दोनों सूरतों में। यह जेर आप जानते ही हैं कि जब दो साकिन इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हस्बे जरूरत जेर लगा के कनेक्टिविटी बनाई जाती है। देन जी, जब फाइल जो है मुअन्नस से गैर हकीकी हो, यानी बेजान मुअन्नस अगर आ जाए, तब भी आपके पास पूरा इख्तियार है, पहला सीगा इस्तेमाल करें या चौथा इस्तेमाल करें। सूरज क्या है? मुअन्नस से गैर हकीकी है, बेजान मुअन्नस है। तो आप उसके लिए ताला शम्स भी कह सकते हैं और तालात शम्स भी कह सकते हैं। तालात भी चलेगा, ताला भी चलेगा। तो तालात शम्सु भी ठीक है और ताला शम्सु भी ठीक है। ताला का मतलब तुलू होना। और आखिरी कंडीशन क्या है? आखिरी कंडीशन वो ये है, रूल नंबर 3 की आखिरी कंडीशन, जब फाइल मुअन्नस से हकीकी हो। फाइल मुअन्नस है, जानदार मुअन्नस, जानदार एग्जैक्ट मुअन्नस, मगर फाइल और फेल के दरमियान फासला आ जाए। देखिए जी, फाइल फाइल फेल है और ये फाइल है, दरमियान में कोई चीज आ गई, तो फिर चाहे आप पहला सीगा इस्तेमाल करें या चाहे आप चौथा सीगा इस्तेमाल करें। तो
आबादत आबादती फातिमा तू, फातिमा ने इबादत की। लेकिन अगर बीच में आ जाए आबादतिल यौमा फातिमा, फातिमा ने आज इबादत की, तो फिर बीच में आ गया गैप। इस गैप की वजह से ये थोड़ा सा ले लेगा लिबर्टी। वो कहता है जी ये जरूरी नहीं कि ये आए, चौथा सीगा भी, पहला भी इस्तेमाल हो सकता है चौथे की जगह। आबादतिल फातिमा, आबादतिल यौमा फातिमा तू या आबादल यौमा फातिमा तू, दोनों ही ठीक है। मैं रिवाइज कर दूं चारों कंडीशंस। चारों कंडीशंस क्या हैं जी? पहली कंडीशन क्या थी? जमा मुकस्सर आकिल हो तो पहला और चौथा दोनों सीगे इस्तेमाल हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी? कि आपके पास कोलेक्टिव नाउन आ जाए, फाइल आपका कोलेक्टिव नाउन है तो भी आप ये दोनों सीगे इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला या चौथा। तीसरी कंडीशन क्या थी? कि आपके पास मुअन्नसे गैर हकीकी आ जाए, जैसे सूरज है, तो उसके लिए भी पहला और चौथा सीगा दोनों में से कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। और मुअन्नसे हकीकी हो और दरमियान में गैप आ जाए फाइल और फेल के दरमियान, तो भी आप पहला और चौथा सीगा इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला या चौथा। अच्छा जी, रूल्स काफी सारे हैं लेकिन आज हम रूल नंबर 4 तक चलेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे। ये है जी आज का आखिरी रूल। ये मैं थोड़ा सा आपके सामने इसकी मिसाल दे भी चुका हूं। अगर मफऊल जो है वो जुड़ के आ जाए, यानी मफऊल हालत ज़मीर में हो, मफऊल की जगह भी आप ज़मीर इस्तेमाल करते हैं तो वो जुड़ जाती है। जैसे मैंने कहा था ना, कतला हामिदन, और बाद में हामिद को भी डिलीट करते मैंने उसकी ज़मीर, तो क्या था? कतला और वो जुड़ गया था उसके साथ। तो ये खाला का हु, खाला का वाहिद मुजक्कर गायब ने तख्लीक किया, हु कोई मुजक्कर वाहिद गायब चीज। तो ऐसे में आप कि अगर आपका मफऊल जो है वो जमीर की फॉर्म में है तो जुड़ के आएगा, वो मुत्तसिला होगा, मुत्तसिल को अटैच्ड कहते हैं, यानी जमीर जुड़ जाएगी। जमीर अकेली नहीं रहेगी, जमीर जुड़ जाएगी। और जमीर आपको पता है किसकी है? मफऊल की। और मफऊल क्या होगा? हालते नस्ब में। तो आपसे कोई पूछे ये जमीर कौन सी है, मजरूरा है, मंसूबा है, क्या है, तो आप कहेंगे चूंकि ये मफऊल की जगह आई है लिहाजा ये हालत नस्ब में है, ये जमीर मुत्तसिला मंसूबा। मंसूबा है जी। बिल्कुल जी, ऐसे भारी भारी लफ्ज हैं, मैं भी प्रोसेस करने में जरा अड़ गया था, आपने हेल्प कर दी। तो खला का हु, खाला का से तो जेन में अल्लाह ताला की जात ले आए ना जी, कि वाहिद मुजक्कर गायब का चल रहा है। खाला का हु कि अल्लाह ताला ने या वाहिद मुजक्कर गायब ने किसी एक वाहिद मुजक्कर गायब को बनाया। खाला का हुमा, किसी एक वाहिद मुजक्कर गायब ने दो वाहिद मुजक्कर गायब को बनाया। खाला का हुम, तो ये जाहिर है जमा आ गई। यहां पर आएंगे तो एक वाहिद मुअन्नस गायब आ गई, खाला का हा, खाला का हुमा, खाला का हुन्ना। खाला का उस वाहिद मुजक्कर गायब ने तुझे, का जो है अंता का कायम मुकाम है ना, तुझे बनाया। खाला का कुमा, तुम दोनों को बनाया। खाला का कुम, तुम सबको, ज्यादा सारों को बनाया। खाला का की, अब मुअन्नसों से आप मुखातिब हैं। और खाला का याए मुतकल्लिम आ गया। अब देखें यहां पर इस या की खातिर पीछे आपने जो ये सीगा है ना खाला का, इस का को नहीं बदलना, यहां फिक्स रहेगा। अब यहां पर आ जाएगा मसला, ये याए मुतकल्लिम क्या कह रही है? मुझे पीछे जेर चाहिए। ये कहेगा नहीं जी मैंने खाला का को खाला का ही रखना है, खाला की नहीं बना देना मैंने, ये जरूरी है। तो मसला पड़ गया। अब बीच में बीच बचाव करने वाला मॉडरेटर चाहिए, वो एक नून आ जाता है। वो कहता है जी मैं बीच में आ जाता हूं, मेरे नीचे जेर लगा दो, खाला का नी। तो इसको नून ने विकाया कहा जाता है, ये विकायगी करने आता है, मॉडरेशन करने आता है, बीच बचाव करने आता है। तो ये जो कसरा का मुतालबा है इसका, ये फेल का सीगा पूरा नहीं कर सकता, उसके लिए बीच में एक नून पड़ जाता है और वो जेर अपने नीचे बर्दाश्त करता है। खाला का नी, मुझे वाहिद मुजक्कर गायब ने मुझे तख्लीक किया, खाला का ना हमें तख्लीक किया। राइट सर। तो ये हम आज यहाँ ब्रेक लगाएंगे और उम्मीद है कि ये आपने एंजॉय किया होगा।
फेल के खाला मामलात। की नहीं हो सकता सर, वो गलत हो जाएगा। खाला का को आपने नहीं छेड़ना जी। यहां पर देखें पूरी गर्दान में खाला का कायम है अपने खाला का की सूरत में। तो खाला की नहीं करना, ये फेल को आपने, फेल का ये प्रोटोकॉल है कि फेल की गर्दान में, माजी की फेल की गर्दान में शुरू वाले तीन वाले समझ लें जी, जैसे कहते हैं ना, मुकस्सर नहीं होते, कायम रहेंगे आखिर तक अपनी शेप में। ठीक। राइट हो गया सर। चलें जी, माशाल्लाह अब तादाद हमारी काफ़ी कम रह गई है। उम्मीद है कि अब ये तादाद मुस्तकिलन आगे तक चलेगी। आई होप अल्लाह ताला इस्तेकामत दे।